हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री जो है ऑन एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट चैप्टर। यानी देखा जाए तो हम यहाँ कक्षा 11वीं का इतिहास करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक बात पे, हर एक टॉपिक के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर चीज़ का एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here doing a most important chapter here on the empire across the three continents. There is a most important chapter here. And next question is also is the most important. What do you understand by the late antiquite? There is a little antiquite. This is important. Explain the religions and the administrative change during this period. You know that there is a most important question for the exam view here. There are letter antiquate. It's important, and there is explain the religious and administrative changes here during this period. The term letter antiquates want used to describe the final fascinating period in the evolutions and break up of the Roman Empire, and refer to broadly to be a 4th to 7th century. 4th to 7th century, there is a most important period time here, and this period was a fully of many cultural and economic advances, and following religious and administrative change were made in the Roman Empire during this period. Let's see. You know that there is a religious changes during the here 4th and 5th century here. In the 4th century empire, continentals is a made of Christianity in their official religions. This is important. Christianity, there is official religions. In the 7th century, Islam is arose. In the 7th century, Islam is arose, and this religions also is again become very popular rapidly. But the admission change, this is a changes occurring in their time of tolerance and continue till their time of Constantine change where is following. Let's see administrative changes here. There is a declarations here. Here see the changes in the time of declarations, and there is a here first point. He is abandoned their territory that had a less economics or strategic value. He abandoned their territories that had a less economics and strategic value. His fortified is the frontiers of empire, and he reorganized there is a provincial boundaries here, and separated civilians from the military functions and granted to the greater autonomy to be military commanders. That's important here according to their administratives here. The next year change in the time of Constantine here. That's important. He create a Constantinople. There is a made in the second capital. The creator Constantinople, and there is a made it is a second capital.
It was surrounded on the three sides of the sea. And as a new capital required a new center, there was a rapidly expansion of the governing classes in the 4th century. हम जो यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत अगला जो हमारा क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर पुरातनता से आप क्या समझते हैं, यानी लेटर एंटिक्विटी क्या होती है। लेटर एंटिक्विटी यानी उत्तर पुरातनता से आप क्या समझते हैं, और इस काल में हुए धार्मिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन की व्याख्या करें। यानी हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चनों को जो है बखूबी रखा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो लेट एंटिक्विटी है और दूसरा है रिलीजियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है चेंजेस। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम व्यू से। अगर हम देखें लेट एंटिक्विटी 1 देखें, शब्द का उपयोग रोमन साम्राज्य के विकास और विघटन में अंतिम आकर्षक अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी एंटिक्विटी जो है शब्द देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के विकास और विघटन में अंतिम आकर्षण अवधि का ये वर्णन करता है और मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी के संदर्भित करता है। और यह काल अनेक जो है सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रगति में परिपूर्ण था। और इस अवधि के दौरान रोमन साम्राज्य में निम्नलिखित धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन किए गए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस समय के दौरान बहुत से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। इसको हमें देखना है कि आखिर क्या धार्मिक परिवर्तन हुए और प्रशासनिक परिवर्तनों में भी क्या चेंजेस आए। चलिए देखते हैं धार्मिक परिवर्तन क्या हुए। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है धार्मिक परिवर्तन। धार्मिक परिवर्तन पे अगर हम नज़र करें तो कहते हैं 4वीं शताब्दी में साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को एकाधिकार धर्म बना दिया। यानी 4वीं शताब्दी में सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को जो है एकाधिकार धर्म बना दिया, यानी एक ही धर्म बना दिया। पूरे साम्राज्य में एक ही धर्म का जो है महत्व रह गया। इवन कि जैसे आगे बढ़ा 7वीं शताब्दी में इस्लाम का यहाँ पर उदय हो गया। इस्लाम धर्म जो है इस समय आ गई और यह धर्म भी तेज़ी से लोकप्रिय होने लग गया। तो देखा जाए तो सारे धार्मिक परिवर्तन थे। जहाँ पर ईसाई धर्म की प्रचार की गई वहीं पे 7वीं शताब्दी में इस्लाम का जो है उदय हो गया और ये धर्म जो है बहुत तेज़ी से लोगों में विकास के मार्ग पर अग्रसर होने लग गया। उसके पश्चात अगर बात करें प्रशासनिक परिवर्तन की तो कहते हैं ये परिवर्तन देखा जाए तो डायोक्लेटियन 243 से 305 के समय में हुआ और कॉन्स्टेंटाइन के समय जारी रही। और ये परिवर्तन कुछ इस प्रकार थे। इसमें 2 पार्टों में इसको जो है परिवर्तित किया गया है। एक पहला है डायोक्लेटियन के समय में परिवर्तन। तो डायोक्लेटियन के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए, उसने उन क्षेत्रों को त्याग दिया जिनका आर्थिक और सामरिक महत्व कम था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी विचारधारा थी कि उन क्षेत्रों को उसने त्याग दिया जहाँ पर आर्थिकता जो है बहुत कम थी, वहाँ पर बिजनेस नहीं की जा सकती थी। तो ऐसे क्षेत्र को जो है इसने नकार दिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया। देखिए कोई भी सरकार हो, कहते हैं सीमाओं का मजबूत करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने मेसोपोटामिया में भी पिछले चैप्टर में भी बात को उजागर किया कि वहाँ पर भी सीमाओं को जो है काफ़ी मजबूती किया गया। और उसने प्रांतीय सीमाओं का पुण्य गठन किया, यानी जो प्रांतीय सीमाएँ थी उनका दोबारा से जो है पुण्य गठन किया गया, दोबारा से निर्माण करवाया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। उसने नागरिकों को सैन्य कार्य में अलग कर दिया और सैन्य कमांडरों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि नागरिकों को सैन्य कार्य से अलग कर दिया और सैन्य कमांडर को और भी अधिक जो है शक्ति प्रदान की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डायोक्लेटियंस के जो है परिवर्तन देखने को हमें मिला। उसके पश्चात आता है कॉन्स्टेंटाइन के समय में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो कॉन्स्टेंटाइन जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसने जो है कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया और उसने दूसरी राजधानी भी बनाया। यानी इसके समय में दूसरी राजधानी बनाई गई और यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। जो राजधानी नया बनाया गया वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा था। इसका मतलब था कि यहाँ पर दुश्मनों का जो है बाढ़ खाली जाता। ये नई राजधानी के नए
सीमेंट की आवश्यकता थी, इसलिए 14वीं शताब्दी में शासक वर्ग का तेजी से विस्तार भी हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें हमने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात पे विचार किया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। अगर पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो अगर देख रहे हो, तो जनरल सी बात है दोस्तों, जो सब्सक्राइब कर मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है आपके लिए।